بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تم افریقی مسلمانوں میں یہی ایک خرابی ہے کہ تم لوگ بہت گرم مزاج ہوتے ہو، ذرا سی بات پر تمہیں غصہ آ جاتا ہے۔ وہ گرج کر بولا، اگر یہ ذرا سی بات ہے تو اپنی بیٹی ایک رات کے لیے ماسٹر زیرو کے پاس بھیج دو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ اس لیے غصہ نہیں آئے گا کہ تمہاری سوسائٹی میں بیٹیاں راتوں کو گھر سے باہر رہتی ہیں، تمہارے ہاں ان کی ایک آدھ رات کا حساب نہیں ہوتا۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں، کوئی ہماری بیٹی کا نام زبان پر لائے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔ ماسٹر زیرو نے جیسی بات کہہ دی ہے، اس کے بعد وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ مسٹر راضی، تم اور ماسٹر زیرو دونوں ہی میرے لیے اہم ہو، میں تم میں سے کسی کا جانی نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے سیدھے سادے انداز میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے اور تمہیں غصہ آ گیا ہے۔ اگر یہ غصے کی بات ہے تو اسے جزیرے سے باہر نکال دو، آئندہ وہ تم سے رابطہ قائم نہیں کرے گا۔ وہ دونوں پارس کو لے کر میرے پاس آ جائے گا۔ ماسٹر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری دونوں بیٹیاں ذہنی طور پر دونوں پارس سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ فرحاد کے بیٹے محض تمہاری رشتہ داری کے لیے اغوا نہیں کیے گئے ہیں، عقل کی بات کرو۔ یہ دونوں ایسی جگہ رکھے جائیں گے جہاں میں اور ماسٹر زیرو انہیں اپنے قابو میں رکھ سکیں۔ چونکہ تم ماسٹر زیرو کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اب دونوں پارس کی جگہ تبدیل کی جا رہی ہے۔ نہیں سپر ماسٹر، دونوں پارس میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ فرحاد کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ تم ماسٹر زیرو سے دوستی بنا رکھنے کی خاطر اتنے اہم معاملے میں تبدیلی نہ کرو۔ میں دونوں کو جزیرے میں رکھ کر تنہا ان پر توجہ نہیں دے سکتا، میری دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ ایسے وقت ماسٹر زیرو ہی ان کی نگرانی کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے دوسرے انتظامات کر لیے ہیں۔ میرا ایک ہیلی کاپٹر وہاں پہنچنے والا ہے۔ میری اجازت کے بغیر کوئی ہیلی کاپٹر جزیرے میں نہیں اترے گا۔ اس طرح دونوں میں ٹھن گئی۔ سپر ماسٹر کو سلمان راضی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ ایسے وفادار کتوں کو غداری کرنے پر آسانی سے ٹھکانے لگا دیا کرتا تھا۔ اسے خطرہ میری طرف سے تھا۔ اس نے پچھلی شام سے ہر اس ملک میں جاسوسوں کا جال بچھا رکھا تھا جہاں میری موجودگی کی توقع تھی۔ چونکہ میں خیال خوانی کے ذریعے اپنے بیٹے کی خبر نہیں لے رہا تھا، اسی لیے خیال پیدا ہوا کہ میں بیمار ہوں، دماغی طور پر کمزور ہوں۔ اس کے جاسوس مجھے ہسپتالوں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر معلوم ہو گیا کہ میں استنبول کے ایک ہسپتال میں ہوں۔ ایسے وقت سپر ماسٹر سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں تھا۔ میں اس کے راستے کا سب سے بڑا پتھر آپ ہٹ گیا تھا۔ وہ میری دماغی کمزوری سے فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن بیمار شیر کی بھی دہشت ہوتی ہے۔ وہ ابھی براہ راست مجھے چھیڑ کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، پہلے دونوں پارس کو ایک محفوظ مقام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے وقتی طور پر مجھے نظر انداز کیا۔ اس کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ وہ جزیرے میں مصروف ہو گیا۔ ایسے وقت اس کی بھی ایک کمزوری تھی، اتفاق سے وہ کچھ بیمار تھا۔ خیال خوانی کر سکتا تھا لیکن چند سیکنڈ سے زیادہ سانس نہیں روک سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جلد سے جلد دونوں پارس کو جزیرے سے نکالنے کے بعد آرام کرے گا اور اپنا باقاعدہ علاج کروائے گا، لیکن وہاں تنہا پارس اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ ماسٹر زیرو کو بے ہوش کرنے کے بعد علی تیمور کا راستہ روک رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ ایسے وقت میں نے دماغی توانائی محسوس کی۔ سب سے پہلے بیٹے کی خبر لینے کے لیے خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کے پاس پہنچ کر معلوم ہوا کہ علی تیمور سپر ماسٹر کا معمول بنا ہوا ہے اور اپنے بھائی سے لڑ رہا ہے۔ میں علی تیمور کے پاس آ کر اس کی ذہنی حالت کا اندازہ کرنے لگا۔ اس وقت سپر ماسٹر جھنجھلا کر اسے کہہ رہا تھا، کیا تم پارس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے؟ وہ فکر مند تھا، جزیرے میں وقت ضائع کیے بغیر میرے دونوں بیٹوں کو وہاں سے نکال لینا چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت رسونتی اپنے بیٹے کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ مجھے تقدیر نے سپر ماسٹر کی آواز سنا دی تھی۔ میں نے اس کا لب و لہجہ اچھی طرح یاد کر لیا تھا، لیکن اس کے دماغ میں پہنچنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ جب موقع ملا تو وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ یہ تقدیر کے تماشے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے میں بستر پر تھا اور اب تقدیر نے لا کر اسے بستر پر پٹخ دیا تھا۔ لوگ بیماری سے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اس فکر سے مرا جا رہا تھا کہ کہیں میں نے علی تیمور کے دماغ میں آ کر اس کی آواز نہ سن لی ہو۔ وہ ہر لمحے اپنے دماغ میں میری آمد کا منتظر تھا۔ اس کا خیال تھا میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر لے گا۔ میں نے اسے خام خیالی میں مبتلا رکھا اور چپکے اہم معلومات حاصل کرنے لگا۔ اس کا نام راجر ہلٹن تھا۔
मैनहट्टन के एक शानदार बंगले में रहता था। बंगले में एक खुफिया टेलीफोन था जिसके ज़रिए हुकूमत के अहम अफराद से राबिता कायम करता था या कंप्यूटर के ज़रिए गुफ्तगू करता था। इमरजेंसी कॉल पर एक फ़ौजी डॉक्टर उसके इलाज के लिए आया था। उसका अच्छी तरह मुआयना करने के बाद दवाइयाँ देकर चला गया था। उसके सेहतयाब होने तक 2 फ़ौजी अफसरों की ड्यूटी लगा दी गई थी। मैंने उसके दिमाग से ऐसे चंद अहम अफसरान के नाम मालूम किए जो ट्रांसफार्मर मशीन और उसके नक्शे की हिफाजत के जिम्मेदार थे। अब वक्त आ गया था कि मैं जल्द अज जल्द वहां तक पहुंचकर उन्हें हमेशा के लिए तबाह कर दूं। मैंने उन अफसरान के नाम, पते और टेलीफोन नंबर मालूम किए। उनमें से कोई योगा का माहिर नहीं था। वो सब उम्र रसीदा रिटायर्ड फ़ौजी अफसर थे और सब बहुत रिजर्व रहते थे। अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने के बाद अब दुनियावी ऐशो इशरत के ख्वाहिशमंद नहीं रहे थे। किसी क्लब वगैरह में नहीं जाते थे। उन्होंने जवानी में शादी नहीं की, इसलिए बुढ़ापे में कोई रिश्तेदार नहीं था। वो तादाद में 3 थे। ज़ेरे ज़मीन खुफिया अड्डे के इंचार्ज थे। एक ज़ेरे ज़मीन अड्डे में ट्रांसफार्मर मशीन रखी हुई थी। दूसरे खुफिया अड्डे में मशीन का नक्शा और ब्लूप्रिंट रखे हुए थे। तीसरा खुफिया अड्डा एक छोटी सी वर्कशॉप था जहां आजकल एक और नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो रही थी। कुदरत को जब मंजूर होता है तो बंदों की आजमाइश के लिए दर्जनों शैतान पैदा हो जाते हैं, और जब ना मंजूर होता है तो हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा कर देता है। उन्होंने कई ट्रांसफार्मर मशीनें बनाई, कई शैतान पैदा किए। आज एक मशीन की मौजूदगी में एहतियातन दूसरी मशीन तैयार की जा रही थी। ऐसे में कुदरत ने मुझे उन खुफिया अड्डों के इंचार्ज तक पहुंचा दिया था। मैं उस इंचार्ज अफसर को किसी वक्त भी वहां पहुंचाकर उन तमाम नक्शों को जलाकर राख कर सकता था, लेकिन ऐसी जल्दबाजी से दूसरे अड्डे के इंचार्ज अफसरान होशियार हो जाते। मैंने बड़े सब्र तहम्मुल से मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया। बाकी 2 अफसरान के दिमागों में पहुंचकर उनके खुफिया अड्डों के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करता रहा। आखिरी मालूमात के मुताबिक नई मशीन तैयार हो चुकी थी। उसे आजमाने के लिए एक मर्द और एक बहुत ही ज़हीन लड़की को उसमें से गुजारा गया था। अब उसमें एक नया तजर्बा किया जा रहा था। मशीन में एक नई तब्दीली की जा रही थी। अगर उसमें कामयाबी होती तो उस मशीन से गुजरने वाला अपनी पिछली ज़िंदगी बिल्कुल भूल जाता। जिसके दिमाग से टेलीपैथी का इल्म हासिल करता उसी की शख्सियत भी इख्तियार कर लेता। ये तजर्बा दूसरे दिन सुबह होने वाला था। वो तीनों अफसर वहां जाने वाले थे। मेरे लिए उन तीनों अड्डों की तबाही बहुत बड़ा मसला बन गई थी, क्योंकि उन मुख्तलिफ 3 ज़ेरे ज़मीन अड्डों के ऊपर जो इमारतें थीं वहाँ मुसल्लह फ़ौजियों का पहरा होता था। वो तीनों इंचार्ज अफसरान पूरी तरह तलाशी देने के बाद इमारतों के तहखानों में जाते थे। वो अपने साथ ऐसा सामान नहीं ले जा सकते थे जिसके ज़रिए मशीनों को तबाह किया जा सकता। तहखानों के दरवाजे मखसूस नंबरों से खुलते थे और वो नंबर सिर्फ वही तीनों अफसर जानते थे। उन मशीनों को और उनके नक्शों को हमेशा के लिए ख़त्म करना इतना आसान नहीं था। अगर मैं आसान समझकर उनकी तबाही पर तुल जाता और उसके बाद एक मशीन या एक नक्शा किसी तरह तबाह होने या जलने से रह जाता, तो फिर वही ट्रांसफार्मर मशीन का चक्कर चलने लगता और उसकी हिफाजत करने वाले पहले से ज़्यादा मोहतात हो जाते। मैं दूसरे दिन कुछ ना कर सका। इन तीनों के पास बारी बारी जाता रहा। उनके ज़रिए उन फौजी अफसरान के दिमागों में जगह बनाता रहा जो उन तय खानों के ऊपर वाली इमारतों में ड्यूटी दिया करते थे। इस बार मैंने रसवंती और आर्मर के अलावा डैनी डैनियल को भी अपने साथ रखा। हम 4 टेलीपैथी जानने वालों ने तकरीबन 30 अफसरान और अहम फौजी जवानों के दिमागों में जगह बना ली। उस रोज़ उनकी तरफ से ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए जो नया तजर्बा किया गया वो नाकाम रहा। यानी मशीन के ज़रिए सिर्फ 2 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हुआ था। हमने फैसला कर लिया अब किसी तीसरे का इजाफा नहीं होगा। आधी रात के बाद हर खुफिया अड्डे पर सिर्फ 2 अफसर चंद फौजी जवानों के साथ पहरा देते थे। हम चारों ने पहले नक्शे वाले तहखाने पर हमला किया। वहां के अफसरों और जवानों के दिमागों को अपने काबू में किया। 2 अफसरान को तहखाने पहुंचाया। वहां दरवाज़ा खोलने के लिए मखसूस नंबर थे जो हमें याद थे। उन्होंने वहां पहुंचकर असल नक्शा और उसके तमाम ब्लूप्रिंट्स वगैरह को एक जगह जमा किया। फिर उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जब तक वो तमाम नक्शे जलकर राख नहीं हुए वो वहां खड़े रहे। फिर तहखाने से बाहर आकर उन्होंने मखसूस नंबरों से दरवाजे को बंद किया। उसके बाद अपनी ड्यूटी की जगह पहुंचे तो हमने उनके दिमागों को आज़ाद कर दिया।
ऐसा करने से उन्हें किसी खास बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो तय खाने में जाने से पहले पी रहे थे, खासे नशे में थे। वहां से वापस आए तब भी नशे में थे। हमने बड़ी फराख दिली से उन्हें तय खाने में पीते रहने का मौका दिया था। बाकी 2 तय खानों के लिए खास बारूदी धमाकों के इंतजामात किए गए थे। पहला मरहला खामोशी से तय हो गया था, दूसरे 2 मरहले खासे हंगामा खेज थे। हम नहीं चाहते थे कि दूसरे तय खाने में धमाके हों तो तीसरे तय खाने वाले होशियार हो जाएं। इस गलती से बचने के लिए हमने दोनों जगह धमाकों का एक ही वक्त मुकर्रर किया। एक तय खाने में जो अफसरान गए उनके दिमागों पर मैंने और आर्मर ने कब्जा जमाया। दूसरे तय खाने में जाने वाले अफसरों के साथ रसवंती और डैनियल लगे हुए थे। दोनों जगह एक एक ट्रांसफॉर्मर मशीन थी। उन अफसरों ने मशीन के अहम और पेचीदा पुर्जों को खोलकर बड़े से बैग में डाल लिया। दोनों मशीनों को बिल्कुल नाकारा बना दिया। फिर उन मशीनों के अंदर और बाहर 4 भारी कुवत के टाइम बम लगा दिए। इसके बाद तय खानों से बाहर आकर इमारत से बाहर निकले। ड्यूटी पर हाजिर रहने वाले जवान उन्हें सलाम कर रहे थे और वो सर हिला हिला कर जवाब देते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे। फिर उन्होंने गाड़ियां आगे बढ़ाईं। बहुत दूर जाकर वो हमारी मर्जी के मुताबिक मुख्तलिफ गटर के नज़दीक रुकते गए। उनके ढक्कन उठाकर थोड़े थोड़े पुर्जे बैग से निकालकर गटर की गहराई में फेंकते रहे। ये अमल देर तक जारी रहा। जब तमाम पुर्जे फेंक दिए गए, बैग खाली हो गए, तो वो अपनी ड्यूटी की जगह वापस जाने लगे। दोनों तय खानों में 4-4 बम रखे गए थे। उन 8 की ब्लास्टिंग का एक ही वक्त मुकर्रर था। जब वो वक्त आया तो जैसे क़यामत आ गई। रात के वक्त उन धमाकों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हमने अफसरों के दिमागों को आज़ाद कर दिया। अब उनके दिमागों को हिलाने के लिए वो धमाके ही काफ़ी थे। रसवंती, आर्मर और डैनियल मेरे दिमाग में आकर बेहद खुशी का इजहार कर रहे थे। मैंने कहा, वाकई आज सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए खुशी का मौका है। हमने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया है कि हमारी इस दुनिया में अब कोई ट्रांसफॉर्मर मशीन नहीं रही है और ना ही कोई नक्शा किसी भूले भटके किरदार के पास रह गया है। इन मशीनों के जो माहिरीन थे वो उन्हीं इमारतों में रहते थे। बम के धमाकों ने उन्हें भी नीस्तो नाबूद कर दिया होगा। हम चारों ने थोड़ी देर बाद ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। मशीन के जितने मैकेनिक और माहिरीन थे उनमें से किसी का दिमाग हमारी सोच की लहरों को कबूल करने के लिए जिंदा नहीं रहा था। डैनियल ने कहा, फरहाद साहब, मैं समझता हूँ ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा है। इसके बाद आप कोई और ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकेंगे। रसवंती ने पूछा, भला वो क्यों? इसलिए कि आजकल दोनों बेटों ने बाप को छुट्टी दे रखी है। इस पर सब कहे लगाने लगे। आर्मर ने कहा, इतनी मेहनत के बावजूद अभी सुपर मास्टर और 2 नए ख्याल ख्वानी करने वाले रह गए हैं। वो दोनों जब तक गुमनाम रहेंगे खुशनसीब रहेंगे। जिस दिन हमारे सामने आएंगे अनजहानी कहलाने लगेंगे। रह गया सुपर मास्टर, उससे अभी निमट लेता हूँ। मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वो सांस रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने हल्का सा झटका पहुंचाया तो वो खड़े खड़े गिर पड़ा। फर्श पर तड़पते हुए चीखने लगा। ड्यूटी देने वाला फौजी अफसर 2 मुसल्ला जवानों के साथ दौड़ता हुआ आया। फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए बोला, क्या बात है? उसने मेरी मर्जी के मुताबिक लुढ़खड़ाती हुई जुबान से कहा, मुझे फरहाद हो गया है। क्या? अफसर ने हैरानी से पूछा, क्या हो गया है? क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? उस खतरनाक बीमारी को क्या कहते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है और जो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती? उसे कैंसर कहते हैं? नहीं, उसे फरहाद कहते हैं। क्या मिस्टर फरहाद तुम्हारे दिमाग में हैं? अगर हैं भी तो तुम उनका क्या बिगाड़ लोगे? क्या ऐसा कोई है जो मुझे फरहाद की इंतकामी कार्रवाइयों से महफूज रख सके? अफसर ने कहा, मैं मिस्टर फरहाद से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे आला हुक्काम से राबिता कायम करें। हमारे हुक्काम उनसे अहम मामलात तय करना चाहते हैं। सुपर मास्टर रॉजर हिल्टन ने कहा, जब मैंने फरहाद के बेटे अली तैमूर को अपना मामूल बनाया और पारस को अगवा कराया तब हमारे हुक्काम को फरहाद क्यों ना याद आया? अब उसे क्या पड़ी है कि वो हमारे हुक्काम से गुफ्तगू करे? अफसर ने कहा, मिस्टर रॉजर, अब तुम सुपर मास्टर नहीं रहे, तुम खामोश रहो, मुझे मिस्टर फरहाद से बातें करने दो। रॉजर ने कहा, मैं टेलीपैथी जानता हूँ, जब तक मेरा वजूद ख़त्म नहीं होगा फरहाद किसी से बात नहीं करेगा, लिहाजा मैं जा रहा हूँ, ये लो। उसने सांस रोक ली। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने उसे सांस लेने नहीं दिया।
वो तड़पता रहा और मैं सोच के जरिए कहता रहा, तुमने अपनी सियासी चालों को कामयाब बनाने के लिए जितने बेगुनाहों को कत्ल करवाया या किया, उन तमाम बेमौत मरने वालों को याद करो। खुदा न खास्ता मैं या मेरे बच्चे कमज़ोर होते तो तुम उन्हें किस तरह अजियतें देकर मारते, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारे जैसे शैतान काबिल माफ़ी नहीं हैं। उसका दम निकल गया और दीदे फैल गए। मैंने अफसर के दिमाग में आकर कहा, अपने आला हुकाम से कहना मेरा हिसाब बराबर हो गया। आइंदा कोई नया हिसाब शुरू होगा तो मैं उनसे गुफ्तगू करने आऊँगा। दैट्स ऑल। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वो 7 शैतान जिन्हें मशीन ने पैदा किया था, उनमें से 6 मर चुके थे। डैनियल रह गया था। वो हमारा वफादार था और अब तक दोस्ती का सबूत पेश करता जा रहा था। वो ऐसी कोई शैतानी हरकत नहीं कर रहा था जिस पर हमें एतराज़ होता। वो जल्द ही इसराइल में मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर या नए सिरे से इंतखाबात कराने के बाद वहाँ अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम करना चाहता था। ये उसका अपना कौमी और मुल्की मामला था। हमें इस सिलसिले में इस हद तक दिलचस्पी थी कि वो अगर हमारा ताउन चाहता तो हम पूरी तरह ताउन करते, क्योंकि वो भी दिन रात हमारे काम आता रहता था। मशीन और नक्शों को हमेशा के लिए तबाह करने में 1 हफ्ता लगा। इस अरसे में जजीरे के हालात तेज़ी से तब्दील हुए। दोनों पारस को फिर आजमाइशों से गुजरना पड़ा। मैं अभी वहाँ के तफसीली वाक़यात बयान करूँगा। पहले मैं अपने हालात बयान कर दूँ, क्योंकि अब इस्तांबुल शहर छोड़ रहा हूँ। थेल्मा दिन में कई बार मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई। मैं तीसरे दिन उसके साथ घर आ गया। टॉम मॉरिस ने मुझसे कहा, ओनील तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन थेल्मा की चाहत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ वो दिन ब दिन तुम्हारी दीवानी होती जा रही है। मैंने कहा, उसकी दीवानगी में खुलूस और नेक नियति है। तुम उसे एक गुनाहगार की आंखों से ना देखो। तुम मुझे गुनाहगार कह रहे हो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आजकल तुम्हारी 2 लड़कियों से दोस्ती है। पहले तो वो चौंका, फिर ढीठ बनकर बोला, तुम्हारे नजूमी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर बात दुरुस्त कहते हो। ये सरासर मुझ पर इल्ज़ाम है। अगर ढिठाई से इनकार करोगे तो मैं सच्चाई साबित करूंगा। तुम कभी साबित नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैंने आज तक थेल्मा के सिवा किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा है। मैंने कहा, थेल्मा अपने शौहर की कदर करो। ये मेरा भाई है, मैं भी कदर करता हूँ। हमें बात को तल्खी की हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए। वो किसी काम से चला गया। लोग इतने ढीठ होते हैं कि गुनाह के ख्याल से कहीं जाते हैं, लेकिन दावा करके जाते हैं कि गुनाहगार नहीं हैं। मैंने थेल्मा के दिमाग में बाहर जाने की शदीद ख्वाहिश पैदा की। वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसकी सोच में कहा, ओनील कभी गलत नहीं कहता, उसकी हर बात दुरुस्त होती है। लेकिन टॉम अपनी पारसाई का दावा करके गया है। अगर मैं उसका ताकुब करूं और कहीं रंगे हाथों पकड़ लूं तो फिर एक बार ओनील की सच्चाई साबित हो जाएगी। वो मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। वो घर से बाहर निकली। टॉम बहुत पहले ही जा चुका था। वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन एक टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर बेइख्तियार बोली, सेंट्रल रोड। कोई 40 मिनट के बाद वो सेंट्रल रोड के फुटपाथ पर चल रही थी। वहाँ कितने ही मसाज एंड बाथ के प्राइवेट अड्डे थे। बूढ़े रईस और शौकीन नौजवान गर्म पानी या भाप के जरिए गुस्ल करने आते थे। गुस्ल से पहले नौजवान औरतें उनके बदन की मालिश किया करती थीं। जाहिर है वो इन हालात में पारसा नहीं रहते होंगे। थेल्मा ने एक अड्डे के मुंतजिम से पूछा, मिस्टर टॉम मॉरिस कौन से बाथरूम में हैं? वहाँ किसी के प्राइवेट मामलात दूसरों को नहीं बताए जाते थे। मुंतजिम ने पहले कुछ बताने से इनकार कर दिया, फिर मेरे मजबूर करने पर बता दिया। वो बाथरूम नंबर 10 के दरवाजे पर पहुंची। ऐसे दरवाजे अंदर से बंद होते हैं, लेकिन मैंने टॉम मॉरिस की बेख्याली में दरवाज़ा उससे खुला रखवाया था। थेल्मा ने अचानक दरवाज़ा खोल कर देखा तो टॉम एकदम से बौखला गया। वो ऐसी हालत में था कि कहीं मुंह भी नहीं छुपा सकता था। वो गुस्से से बोली, यू चीट, गलाजत के कीड़े, अभी इसी वक्त घर आओ, आज हमारा फैसला होगा। ये कहते ही वो थूक कर चली आई। 1 घंटे बाद वो दोनों मेरे सामने थे। टॉम ने कहा, ठीक है, मैंने जो कुछ किया वो कोई नई बात नहीं है। अपनी औरत जब दूसरे मर्द से इश्क करने लगे तो मर्द भी बाहर जाकर बहकता है। थेल्मा ने नफरत से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने गुनाह का हिसाब कम करने के लिए मुझे गुनाहगार कह रहे हो? मुझे शर्म दिलाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो।
तुम अब मेरे काबिल नहीं रही हो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा। अरे तुम अपनी ज़िंदगी गुजारने की बात करते हो, मैं एक सेकंड तुम्हारे साथ रहना अपनी तौहीन समझती हूँ। ऐसी बात है तो फिर निकलो यहाँ से, मेरे घर में क्या कर रही हो? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, क्या भूल गए? शादी की 25वीं सालगिरह पर तुमने ये मकान मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। बाकायदा कोर्ट पेपर पर मेरे नाम रजिस्ट्री करवाई थी। अभी यहाँ से नहीं निकलोगे तो वो कागजात लॉकर से निकलवा कर कानूनी कार्रवाई करूँ? तुम मुझे मेरे ही घर से निकालोगी और इस ओनील के बलबोते पर निकालोगी। मैं अभी तुम्हें सीधा करता हूँ। वो गुस्से से पांव पटकता हुआ दूसरे कमरे में गया। थेल्मा सहम कर मुझसे बोली, ये कमीना बहुत जालिम है, गुस्से में आता है तो हंटर से मारता है। मैंने कहा, कमज़ोर मार खाते हैं, मेरा इल्म कहता है तुम शाज़ोर हो, इससे हंटर छीनकर इसकी पिटाई करोगी। बेशक तुम्हारा इल्म सच्चा है, लेकिन वो हाथ पांव का मजबूत है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही टॉम ने ड्राइंग रूम में आकर शराब की आवाज़ के साथ हंटर को फजा में लहराया। फिर थेल्मा की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं औरत और घोड़ी को काबू में रखना जानता हूँ। मैं थेल्मा के दिमाग में था, उसका निशाना चूक नहीं सकता था। उसने गुलदान उठाकर टॉम के सर का निशाना लिया। गुलदान ठीक सर पर लगा। वो उछलकर उसके पास आई। उसके संभलने से पहले हंटर को उसके हाथ से छीन लिया। फिर कुछ फासले पर जाकर हंटर को लहराते हुए उसकी पिटाई करने लगी। वो बचना चाहता था, मैं उसके दिमाग में रहकर बचने नहीं देता था। थेल्मा का कोई वार खाली नहीं जा रहा था। टॉम का लिबास फट रहा था, जिस्म पर सुर्ख निशानात पड़ रहे थे। जहां चमड़े का हंटर पड़ता था वहां से खून उबल पड़ता था। टॉम ने कई बार कोशिश की उसके करीब जाए और हंटर छीन ले, लेकिन मैं उसे नाकाम बनाता रहा। आखिर वो चकरा कर गिर पड़ा। थेल्मा पसीने पसीने हो रही थी, हाँफते हुए कह रही थी, इसी ड्राइंग रूम में तुमने सैकड़ों बार डॉन को हंटर से मार मार कर लहूलुहान किया। फिर इसी जगह एक दिन डॉन ने हम सब की पिटाई की। आज मैं तुम्हारी खाल उतार रही हूँ। अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, फिर कभी मेरे दरवाजे पर आओगे तो मुलाजमों से जूते खाकर जाओगे। वो तकलीफ से कराहते हुए फर्श पर बैठ गया। ऐसी हालत में वो अपने पाँव पर चलकर नहीं जा सकता था। मैंने एक मुलाजिम को बुलाकर कहा, इसकी मरहम पट्टी करो और लिबास तब्दील करवाओ। मुलाजिम हुक्म की तामील करने लगा। जब मरहम पट्टी हुई और लिबास बदल गया तो उसने कहा, थेल्मा, जो हुआ उस पर मिट्टी गिरा दो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, हम आज से एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। नई ज़िंदगी हम नहीं, मैं शुरू करूँगी। औरत से मार खाने वाला मर्द मेरा जीवन साथी नहीं हो सकता। निकल जाओ यहाँ से। उसने मुझे देखा। मैंने कहा, तुमने मेरे इल्म को गलत कहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी मुस्तकबिल की बातें नहीं बताई थीं। अब बता रहा हूँ, इस घर से निकलने के बाद तुम कूड़ी कूड़ी के मोहताज हो जाओगे। वो बोला, मैं तुम्हारे इल्म को मानता हूँ, मुझे तुम बचा लो। अगर तुम्हें मैं बचाऊंगा और फिर इस घर में रहने का मौका दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। सैम मुझे हलाक करने में नाकाम रहा, तुम कामयाब हो जाओगे। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम्हें। मैंने हाथ उठाकर उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारे कसम खाने से मुकद्दर नहीं बदलेगा। मेरा इल्म कहता है मैं यहाँ से जल्द ही जाने वाला हूँ। मेरे जाने के बाद तुम थेल्मा को कत्ल करोगे। अगर तुम दोनों में अलहदगी रहेगी तो ये जिंदा रहेगी और एक अमीर कबीर खातून की तरह जिंदगी गुजारेगी। बेहतर है तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। वो सर झुकाकर चला गया। थेल्मा मेरे पास आकर ज़मीन पर घुटने टेकते हुए बोली, क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? हाँ, हम सब तकदीर के हाथों में खिलौना हैं। तदबीरें और तुम्हारे आंसू मुझे रोक नहीं सकेंगे। अब मेरी बातें गौर से सुनो। कल से तुम्हारे पास बेइंतहा दौलत आती रहेगी। दौलत के साथ दुश्मन भी पैदा होते रहेंगे, लिहाजा तुम अपनी दौलत से गुंडे खरीदोगी जो तुम्हारी हिफाजत करेंगे और दुश्मनों के दिलों पर तुम्हारी हैबत तारी करेंगे। ओनील, मैं जानती हूँ तुम जो कहते हो वही होता है, लेकिन ये सब ख्वाब की सी बातें लग रही हैं। आने वाले कल को आने दो और अभी मुझे तन्हा छोड़ दो। हम आज की रात क्लबों और कुमार खानों में गुजारेंगे। वो आज रात मेरे साथ वक्त गुजारने के ख्याल से खुश थी। मुझे तन्हा छोड़कर चली गई। उन दिनों मैं तन्हाई में ट्रांसफॉर्मर मशीन और उसके नक्शों को तबाह करने के सिलसिले में ख्याल ख्वानी किया करता था। हम रात के 8 बजे घर से निकलने लगे। मैंने कहा, तमाम मुलाजमों को और नाइट चौकीदार को छुट्टी दे दो। घर की खिड़कियां और दरवाजे लॉक कर दो। आज रात यहाँ कोई नहीं रहेगा। उसने बेचूंचरा मेरी हिदायत पर अमल किया। वो सही मानों में मुझ पर अंधा एतमाद करती थी।
اس نے تمام دروازوں کو مکفل کر دیا۔ میں نے اسے چابیاں لے کر ڈیش بورڈ میں رکھ دیں۔ اس نے اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت خوش تھی، بڑے موڈ میں کار ڈرائیو کرنے لگی۔ میں نے کہا، تھیلما، کبھی جذبات میں بہہ کر میرے پاس نہ آنا، ورنہ بلندی پر جاتے جاتے اچانک ذلت کی پستیوں میں جا گرو گی۔ میں ہمیشہ وہی سمجھاتا ہوں جس سے تمہاری زندگی سنور سکتی ہے۔ میں مانتی ہوں تم کوئی غلط بات نہیں سمجھاؤ گے۔ ہم ایک بہت بڑے کلب میں آئے۔ وہاں صرف کروڑ پتی اور ارب پتی سرمایہ دار جوا کھیلنے آتے تھے۔ وہاں کے دستور کے مطابق نقد رقم لاتے تھے اور اپنے ساتھ 1-2 مسلح گارڈز رکھتے تھے تاکہ نقد رقم پر کوئی ہاتھ صاف نہ کر سکے۔ ہم ایک کارنر ٹیبل کے اطراف آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے اپنی اپنی پسند کے مشروب کا آرڈر دیا۔ بیرا چلا گیا تو میں نے کہا، تھیلما، یہاں میری کوئی حرکت عجیب لگے تو خاموش رہنا، تمہیں بعد میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور جب میں سر جھکا کر خاموش رہوں یا کھانے میں مصروف رہوں تو مجھے مخاطب نہ کرنا۔ کوئی بیرا یا کوئی اجنبی آئے تو اسے 2-4 باتیں کر کے ٹال دینا۔ میں نے ایک اور بیرے کو اشارے سے بلا کر وقت پوچھا، اپنی رسٹ واچ یوں ہاتھ میں لی جیسے اپنی گھڑی کا وقت درست کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے وقت بتایا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم جا سکتے ہو، ہم آرڈر دے چکے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ میں 2 بیروں کے دماغ میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وہ جس میز پر آرڈر کی تکمیل کے لیے جاتے تھے، میں اس میز والے کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرتا تھا وہ جوا کھیلنے آیا ہے یا محض حسینوں کے ساتھ رقص کرنے کے بعد کھانا کھا کر گھر جانے والا ہے۔ کئی دولت مند افراد کی سوچ نے بتایا کہ وہ خاصی رقم لے کر کھیلنے آئے ہیں۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ کسی کے بیگ یا بریف کیس میں 2-4 لاکھ یا 5 لاکھ ڈالر سے زیادہ رقم نہیں تھی۔ میرے سامنے مشروب سے بھرا ہوا گلاس آ گیا تھا۔ میں نے اس کی ایک چسکی لے کر کہا، تھیلما، اب میں بالکل خاموش رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک رئیس زادے کے دماغ پر قبضہ جمایا جس کے بریف کیس میں 5 لاکھ ڈالر تھے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی حسینہ سے بولا، میں ذرا باتھ روم سے آتا ہوں۔ حسینہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ بریف کیس اٹھا کر باتھ روم میں آیا، پھر ایک دروازے پر پہنچا۔ وہاں میں نے پوری طرح اس کے دماغ کو مٹھی میں لے لیا، پھر اسے کلب کے پچھلے راستے سے نکال کر تھیلما کی کار میں لے آیا۔ وہ اسے ڈرائیو کرتا ہوا تھیلما کے بنگلے میں پہنچا، ڈیش بورڈ کھول کر بنگلے کی چابی نکالی، ایک ہاتھ سے بریف کیس اٹھایا، پھر مکفل دروازوں کو کھولتا ہوا تھیلما کے بیڈ روم میں آ گیا۔ بریف کیس کھول کر اسے بستر پر الٹ دیا۔ نوٹوں کی گڈیاں پلنگ کی چادر پر دور تک پھیل گئیں۔ اس نے بریف کیس کو دوبارہ بند کیا، پھر اسی طرح تمام دروازوں کو مکفل کرتا ہوا کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ بنگلے کی چابیاں واپس ڈیش بورڈ میں رکھ دیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا کلب کے اسی حصے میں پہنچا، وہاں گاڑی پارک کی، پھر کلب کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر باتھ روم کے اسی دروازے تک پہنچا جہاں میں نے اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمایا تھا۔ میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے چونک کر کچھ سوچا، اپنے آس پاس دیکھا۔ دماغ نے سمجھایا وہ ابھی یہیں دروازے کے سامنے تھا۔ میں نے اسے سوچنے سمجھنے کے لیے چھوڑ دیا اور دماغی طور پر حاضر ہو کر مشروب سے بھرا گلاس دوبارہ اٹھا کر پینے لگا۔ تھیلما چور نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تم میری خاموشی سے بور ہو رہی ہو؟ وہ جواباً مسکرا کر بولی، تمہاری خاموشی میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ خوشی کیا کم ہے کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزار رہی ہوں؟ کیا تمہیں ٹام سے الگ ہونے کا دکھ نہیں ہے؟ بائی گاڈ، خوشی ہو رہی ہے۔ میں خود کو ایسی ہلکی پھلکی محسوس کر رہی ہوں جیسے میرے اوپر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں اس سے باتیں بھی کرتا رہا اور وہاں بیٹھے ہوئے دولت مند عیاشوں کے پاس بھی پہنچتا رہا۔ آخر ایک ایسے شخص کے دماغ میں پہنچ گیا جس کے پاس 1,40,00,000 ڈالر کالے دھن کی صورت میں تھے۔ اتفاق سے اس کی کوٹھی تھیلما کے بنگلے کے قریب ہی تھی۔ میں نے کہا، میں پھر خاموش رہوں گا، تم کھانے کا آرڈر دو مگر مجھے بالکل مخاطب نہ کرنا۔ میں نے اس کالے دھن والے کے دماغ پر قبضہ جما کر کلب سے اس کی کوٹھی میں پہنچایا۔ وہ تمام دولت بیڈ روم کے فرش کے نیچے ایک خفیہ خانے میں چھپائی گئی تھی۔ اس نے ایک بڑے سے بیگ میں تمام نوٹوں کی گڈیاں بھر لیں، وہاں ایک نوٹ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر تھیلما کے بنگلے میں آ کر اس کے بیڈ روم میں پہنچ کر وہ تمام نوٹ اس کے بستر پر الٹ دیے۔ میرے پہلے شکار کی طرح تمام دروازوں کو مکفل کرتا ہوا باہر آیا، چابیوں کو ڈیش بورڈ میں رکھا، پھر گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ایک ویران راستے پر رک گیا۔ دروازہ کھول کر اس خالی بیگ کو نکالا جس میں رقم لایا تھا۔ اس بیگ پر لائٹر کا پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، اسے ایک طرف پھینکا، پھر 10 منٹ کے اندر کلب میں واپس آ کر اپنی میز کی اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔
मैं उसके दिमाग को आज़ाद छोड़कर थेल्मा को मुस्कुराते हुए देखने लगा। वो जवाबन मुस्कुराते हुए बोली, अपने इल्म में डूबने के लिए घर की तन्हाई मुनासिब होती है। तुम मेरी खातिर हुजूम में परेशान हो रहे हो। हम खाने के बाद घर चलेंगे। बैरा हमारे दरमियान खाने की डिशें लाकर रखने लगा। मैंने कहा, अब मुझे तन्हाई और खामोशी की ज़रूरत नहीं है। हम खूब बातें करेंगे। तुम मुझे इस्तांबुल की सैर करवाओगी। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।